بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، کھانے پینے کے آداب سے متعلق مسائل کا ذکر اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے چلا ہے، اور ایک دو مسئلے پر بات بھی ہو چکی ہے، جس میں سے ایک بسم اللہ کر کے کھانے سے متعلق۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بارے میں بھی بات آ چکی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کھانا پینا سب جو ہے، کھانا پینا دونوں کے آداب سے متعلق بات ہے یہ۔ آج ایک اسی حدیث میں ایک تیسری بات ہے، اس کے تعلق سے کچھ بات ذکر کریں گے، اور ایک اور مسئلہ ہے جو بڑی کثرت سے پیش آتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اس مسئلے کو لے کر کے۔ اس مسئلے کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ آج کا ہے، دو مسئلے آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ تو اس حدیث میں جس میں یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب عمر بن ابی سلمہ کو یہ کہا تھا کہ اللہ کے نام سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کل مما یلیک لفظ آتا ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ، یہ حکم تھا، جو ایک ادب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب عمر بن ابی سلمہ کو سکھایا تھا۔ جب وہ کھانے پر ان کا ہاتھ ادھر ادھر طواف کرنے لگا تھا، گردش کرنے لگا تھا، تو آپ نے ان کو یہ بات سکھائی تھی۔ تو یہاں اب یہ مسئلہ کہ اپنے سامنے سے کھانا یا اپنے جو قریب ہے اس سے کھانا، وہاں سے کھانا، یہ شکل کب ہوتی ہے؟ یہ آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں جو کھانے پینے کا انداز تھا، اس زمانے میں آپ کو جانا پڑے گا، یعنی اپنے تصور میں وہ وقت، وہ زمانہ، وہ پیریڈ جو ہے لانا پڑے گا کہ اس زمانے میں کھانے پینے کا انداز کیا ہوتا تھا، کھانے کا کیا طریقہ تھا، کس طرح سے لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ آج کا ہمارا کھانے پینے کا انداز ٹوٹلی بدل چکا ہے۔ ہمارا جو انداز ہے، یہ انداز کہہ لیجئے کہ یا تو یورپین کلچر سے آیا ہے، یا اور دوسرے کلچر جو پائے جاتے ہیں ان سے آیا ہوا ہے۔ صرف یورپین کلچر ہی نہیں ہے، بہت سارے کلچر ہیں، اور بہت ہی پرانے کلچر جو ہمارا اپنا ملک ہے نا، تو انڈین کلچر، اس کا بھی یہ بھی بہت پرانا کلچر ہے یہاں کا۔ ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو ہمارے بھی کھانے پینے کے بہت سی چیزیں ہم نے جو ہے وہ ویسٹرن کلچر سے لے لیا ہے، ورنہ جو یہاں کا پرانا کلچر ہے نا،
वो इंडियन कल्चर, तो उसमें भी खाने पीने का कुछ खास अंदाज होता था बैठ करके, लेकिन वो अलग अंदाज था। तो किसी भी पुराने से पुराने कल्चर में आप चले जाएंगे ना अगर आप, तो वो कल्चर कुछ अलग है, और अरबों का जो कल्चर था खाने पीने का वो अलग था। तो इसमें आपको जाना पड़ेगा, उन उस हदीस को समझने के लिए आप उस पुराने कल्चर में जाना पड़ेगा आपको। तो कल्चर क्या था वो, कि वो बड़े से बर्तन में खाना एक साथ रख लिया करते थे, और ये हलके की शक्ल में बैठ जाते थे गोलाई के साथ। हल्के का मतलब क्या होता है, कि राउंड, राउंड टेबल होती है ना एक जो है। तो राउंड टेबल का जब आता है ना, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस है आज़ादी से मुताल्लिक। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में कह लेते हैं वो, वरना हम लोग उर्दू में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको किसी जमाने में तारीख में पढ़े हुए थे। तो मैं ये बता रहा था कि वही वो अंदाज था। वो मेज तो नहीं होती थी, वो जमीन पर बैठते थे लोग, लेकिन वो बर्तन कोई बड़ा सा होता था, तो उसमें कोई खाने की चीजें उसमें रख दी जाती थी, और लोग चारों तरफ से उसी से में हाथ लगा करके खाया करते थे। तो ये चारों तरफ से, चूंकि हल्का है, ये राउंड है ये, तो राउंड जो है ये चीज नहीं, जो बैठने का अंदाज होता है वो क्या है, गुलाई में बैठते थे। तो इस तरह से वो लोग बाकायदा जो है सामने से उनको खाना होता था। जो आपके सामने है खाना, जो आपके करीब है, आप वहां से खाएंगे। ऐसे ही हर कोई अपने अपने सामने से खाएगा। उसपे बीच में से निकालना कोई चीज, या दाएं बाएं जो किसी और के सामने है वहां से कोई चीज ले लेना, ये अदब के खिलाफ चीज थी। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यकीनन तो आपको भी बुरा लगेगा अगर ऐसा हो कहीं, एक साथ बैठ के ऐसे खा रहे हैं, तो आपके सामने को अगर कोई, मान लीजिए कि कोई पीस है, अच्छा सा पीस है खाने का, लेग पीस पड़ा हुआ है, ये थोड़ी देर तसव्वुर कीजिए कोई और आगे से हाथ बढ़ा करके उसको लेना चाहे, तो आपको फिर वो चीज तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये कोई भी इसको समझ सकता है। तो ये अदब था, ये सिखाया कि आप अपने सामने से खाओ। ये जो खाने की चीज होती थी चारों तरफ एक ही होती थी। ऐसा नहीं था कि उनकी तरफ कुछ और है, मेरी तरफ कुछ और है, उनकी तरफ कुछ और है, जो उधर है उनकी तरफ कुछ और है। तो अलग अलग चीजें नहीं होती थी, वो एक ही चीज है जो एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में रख दी गई है। वो छोटे छोटे बर्तनों में निकाल करके खाने का जो अभी हमारे पास है चलन है, जो आज के दौर में आदाब में दाखिल है, कि एक ही बर्तन में सब हाथ लगा करके खाएं, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, या कहिए वेस्टर्न कल्चर का भी ये हिस्सा हो सकता है। अब तो वेस्टर्न कल्चर का ये है कि अलग अलग आप प्लेट या प्याले में भी निकाल करके हाथ से खाएं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, कि छुरी और कांटे से खाइए, वो एक अलग कल्चर होता है। लेकिन अलग अलग प्लेटों में, अलग अलग जो है प्यालों में निकाल के खाने का ये कल्चर आम तरीके से और जगहों पर भी पाया जाता है, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर ही नहीं है ये। और अरबों के यहाँ भी इस तरह की बात चीजें ऐसी होती थी कि वो इस तरह से भी खा लिया करते थे। लेकिन खाने का एक अंदाज उनका ये भी था, जब एक साथ इज्तिमाई शक्ल में बैठ के खाते थे, तो बीच में खाना रख दिया गया अपने सामने से, उसी से वो लोग खाया करते थे। आज भी उनके यहाँ ये कल्चर है। ये अलग बात है कि अब उनके यहाँ आम जो खाना खाते हैं वो लोग, वो भी वेस्टर्न कल्चर के लिहाज से ही खाते हैं। लेकिन कभी कभी उनका जो रिवायती अंदाज है, रिवायती अंदाज का मतलब संस्कृति जो कहा जाता है हिंदी में, यानी जो पुराने जमाने का जो उनका अंदाज है, उसका वो बाज मौकों पर अभी भी वो इस तरह से खाते हैं।
उसको बाकी रखे हुए। जैसे जब किसी को दावत देते हैं घर में, तो हमें इत्तेफाक हुआ है इसका, इसलिए बता रहे हैं कि उसमें ये चीज होती है कि ऐसे ही बैठ जाते हैं और हर कोई अपने सामने से खाएगा और पूरा एक साथ रख दिया जाता है। ईद के मौके पर जब मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा था कि ईद के मौके पर खास तरीके से दावत का एहतमाम, रोज जो वहाँ की कह लीजिए कि जो मतबख यानी जो खाने का जो इंतजाम है हॉस्टल के अंदर, जो सारे तलबा के लिए होता है खाने का इंतजाम, तो रोज जो अंदाज है वो वही वेस्टर्न कल्चर के लिहाज से अपने अलग अलग प्लेट में अपना खाना लेके आते हैं और सब कोई अपना अलग अलग खाना खाते हैं। लेकिन ईद के मौके पर देखा हमने कि बाकायदा वही अंदाज, बड़े से बर्तन में खाना ये रख दिया जाता है और फिर वो गुलाई में बैठ जाते हैं लोग उसी में और अपने सामने से खाते हैं। तो ईद के मौके पर ऐसा देखा, ये उनका रिवायती अंदाज कहलाता है। और यही अंदाजा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी यही चीज थी, और उसी के लिए मुनासिबत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को कहा कि अपने सामने से खाओ। और छोटे से ही बच्चों को ये सब अदब सिखाने पड़ते हैं कि इधर उधर हाथ जाने के बजाय सामने से खाओ। तो ये चीज हो गई सामने से खाने की, या जो करीब है उसे खाने की, वहां से खाने की, ये उस कल्चर से इसका ताल्लुक था। अब जब, अब मैंने अभी कहा आपसे कि प्लेट, बड़े से बर्तन में अभी खाना सामने रख दिया जाता है और आप छोटे छोटे बर्तनों में वो निकाल करके खाते हैं, या छोटे छोटे प्यालों में कुछ डिशें होती हैं जो आप निकाल करके खाते हैं। अलग अलग लोग अपने अपने लिहाज से जितना उनको खाना हो निकाल करके वो खाते हैं। तो अब चूंकि वो खाना सिर्फ उनको उनके लिए ही होता है, वो खुद ही खाएंगे वो, तो इसमें वो बात नहीं रह जाती है कि आपको सामने से ही खाना है, या अगर जरूरत पड़ी तो पूरा खाना एक साथ सालन के साथ मिला ले तो इसमें कोई हरज होगी, हरज है इसमें कोई, तो ऐसी कोई बात नहीं है अभी। ऐसा कोई मसला इस पे वो चीज लागू नहीं होती है। यही चीजें समझने की होती है। तो अब जो हमारे खाने की शक्लें हैं ना, कि हम अपने अलग अलग प्लेट में निकाल कर खाते हैं, तो इस पर वो हदीस लागू नहीं होती है। लेकिन फिर भी अदब और सलीका रख रखाव है बाज जगहों पर, जिसे हम अगर मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहना चाहे तो इसे मुरुवत कहेंगे। और मुहद्दिसीन इन आदाब की पाबंदी को भी बहुत अहम समझते थे, कि जो आदमी मुआशरे और समाज और सोसाइटी के रख रखाव को सामने रखता है, और वही उसी को जो है वो मुरुवत कहते थे। तो उसकी हदीसों को लेने के ताल्लुक से, और जो आदमी नहीं एहतमाम करता तो थोड़ा उसकी हदीसें थोड़ा महल्ले नजर हो जाती थी, बहरहाल थोड़ा उसका लिहाज भी होता था किसी भी रावी की हदीस कबूल करने को लेकर के। तो ये रख रखाव में ये है, बाज इलाकों में वो भी, बाज इलाकों में रख रखाव में नहीं है। कि वो तो ऐसा है कि भाई प्लेट में जो निकाल लिया है तो उसको किसी भी तरह से हाथ करके पूरा मिला करके तब जो है खाते हैं, उनके खाने का अंदाज कुछ और होता है। लेकिन जिनके यहाँ रख रखाव में ये है कि जो प्लेट में भी निकाल के हम खाएंगे अपने ही प्लेट में, तो सामने से खाएं और पूरा खाना मिलाएं नहीं इस तरह से, वो उनके अदब के खिलाफ है। और कोई अगर उनके बगल में बैठ करके ऐसा करता है तो वो नाक सिकोड़ते हैं उसको देख करके, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो रख रखाव के खिलाफ मानते हैं इसको। तो ये सब चीजें भी जो है ये खाने पीने के आदाब से इसका ताल्लुक होता है। तो जहाँ बैठे हैं, जिस समाज और सोसाइटी में बैठे हैं, उसके कुछ आदाब होते हैं तो उसका लिहाज करना होता है। बस दूसरी जगहों पर जाएं तो वो चीज नहीं होती है। मैं एक दो मिसालें पेश करता हूं आपको इसके इसको लेकर के। जैसे मैं हूं तो मुझे वो पसंद नहीं है कि
प्लेट में भी निकाला है चावल अगर है तो ही मसला होता है ये, कि पूरा मिलाएं उसके बाद जो है खाएं। अपने सामने से बस मिला के खाते हैं। इसके कुछ फवायद भी होते हैं। इस जो ये रखा गया ना, ये जो रख रखाव है, ये इसके कुछ फवायद भी होते हैं। क्या मतलब फवायद होने का? आप सामने से खाएंगे ना तो बकिया खाना अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, बच भी गया है, तो दूसरे शख्स को खाने में उसे कराहत नहीं होती है कि एक तरफ से खाया गया है, बकिया हिस्सा तो कोई मसला नहीं है। तो तबीयत की कराहत, वैसे तो झूठा तो हम मुसलमानों के यहाँ किसी का भी झूठा हो खाना जायज होता है, लेकिन तबीयत में कराहत होती है कभी, तो उस लिहाज से अगर एक तरफ से खाना खाया गया है जो प्लेट में निकाला गया है, तो मिला करके इस तरह से नहीं किया गया है तो कराहत नहीं होती है। अगर किसी का बचा हुआ है तो आसानी से हम खा लेते हैं। तो हम घरों में खाना फेंकने के कायल नहीं है। अगर हमारे ही फैमिली मेंबर में से किसी ने खाया और कुछ बच गया और उसको अब नहीं खाया जा रहा है तो हम उठा के खा लेते हैं। लेकिन जब उस तरह से मिला दिया हो तो जरा वो कराहत होने लगती है। बहरहाल एक चीज होती है ये। तो ये बाज इलाकों में लोग उसको ये रख रखाव के खिलाफ मानते हैं, बाज इलाकों में कोई मसला नहीं, मिला करके आराम से खाते हैं। इसी तरह से रोटी वगैरह के भी मसाइल होते हैं। बहरहाल मैं थोड़ा रोटी को छोड़ करके अभी चाय के ताल्लुक से, वही मैं रख रखाव की बात कर रहा हूँ। ये अलग अलग इलाकों का अलग अलग अंदाज होता है। ये चाय पीते हैं आप, कप उठा के चाय पी रहे हैं, तो रख रखाव की बात यह है कि बाज इलाकों में अगर कोई शख्स चाय पी रहा है और चाय मुंह से लगा करके जो वो चाय अंदर को ले रहा है ना, अगर उसमें आवाज निकल जाती है तो उसको बहुत बुरा मानते हैं। अगर मजलिस में बैठे हुए हों, कई लोग हैं, और कोई आदमी चाय पी रहा है और उसमें आवाज आ जा रही है, तो दूसरे लोग बहुत बुरा मानते हैं, कभी वहां से उठ जाते हैं। और ऐसे शख्स के साथ बैठकर चाय पीना उनको गवारा नहीं होता है। तो ये रख रखाव की बात होती है। तो ये इलाकों का फर्क होता है, उनको अच्छा नहीं लगता हो तो क्या कहेंगे, भाई आप ऐसे चाय पियो कि उसमें आवाज ना आए। तो उसको आवाज आ रही है तो गदब, उसको अदब के खिलाफ मानते हैं। ये नहीं कि कोई हराम है या जायज नहीं है, नहीं, वो आदाब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, मुरुवत के खिलाफ है उनके लिहाज से। तो इस सिलसिले की एक बात मैं पेश करना चाहता हूँ असल आपको, कि आप बिस्किट है, बिस्किट आपने ले लिया, तो बिस्किट को चाय, कप में चाय है, हालांकि कोई मुश्तरक बर्तन भी नहीं है वो, हर आदमी का कप अलग अलग है ना, तो अपने कप में ही बिस्किट को कप में यानी चाय के अंदर डुबो करके खाएं, तो ये हमारे इस मुल्क के बहुत से इलाकों में इसको अदब के खिलाफ माना जाता है। कि ये मजलिस में, अब आदमी कहीं अकेला घर में था खाया वो अलग बात है, लेकिन जब आप लोगों के साथ हो, मजलिस में हो ना, तो उसको मजलिस के अदब के खिलाफ माना जाता है कि आप इस तरह से उसको में डुबो करके खाएं। ऐसे लोग रहेंगे बैठे हुए तो इतना बुरा लग जाता है कि वो मस्जिद से खड़े हो जाएंगे नहीं, और साथ में बैठेंगे नहीं, भाग जाएंगे फौरन अगर किसी को इस तरह से देख लिया तो। तो ये होता है अलग अलग जगहों का। तो जब मैं पहली मर्तबा एक ऑफिस में गया, और बड़े जो है वो साहब काफी मशहूर आदमी भी थे और काफी मालदार आदमी थे, वो अपने साथ असल में वो लेकर के गए थे और अपनी ऑफिस दिखाने के लिए। तो ऑफिस में बैठाया, चाय मंगाई और साथ में बिस्किट, और मैंने देखा कि वो बिस्किट को चाय में डुबो करके खा रहे हैं। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल से आए थे जहां इसको अदब के बड़ा सख्त खिलाफ माना जाता है, और अगर कोई ऐसा करे तो मजलिस से उठ जाएंगे, यानी इस हद तक उनको नागवारी होती है इसमें।
تو بڑا عجیب لگا مجھے کہ کیا یہ بھی اس طرح سے چائے میں جو ہے بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہیں؟ اس کے بعد تو ہمیں بھی عادت پڑ گئی، ہم بھی کھانا شروع کر دی۔ تو جہاں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا آدمی کرنے لگتا ہے، اور اس کو پھر کچھ اور چیز محسوس نہیں ہوتی ہے، ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ تو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے رکھ رکھاؤ کا اس کو خیال کرنا ہوتا ہے، انہی کو آداب کہا جاتا ہے۔ تو کھانے پینے کے آداب میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، تو وہ اس کیفیت کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ وہ اس کے ساتھ ہی وہ حکم ہے۔ اب جب آپ نکال رہے ہیں برتن میں کوئی چیز، اب برتن میں ہم نکال کے نہ کھا رہے ہیں، تو اب اس سے متعلق کیا ہے؟ جیسے مان لیجئے بریانی ہے، تو ایک بڑے برتن میں رکھ دی گئی ہے، ٹرے وغیرہ میں رکھ دی گئی ہے، اب اس میں سے آپ کو اپنے پلیٹ میں نکال کے کھانا ہے، تو کیا اپنے سامنے سے ہی نکالیں گے صرف؟ دائیں بائیں ہاتھ نہیں جائے گا اس میں؟ کیونکہ بریانی میں ایک مسئلہ کیا آ جائے گا آپ کے لیے کہ اس میں گوشت کی جو بوٹیاں ہوتی ہے، پیس کہہ لیجئے، کیونکہ بوٹی یہاں کچھ اور چیز کے لیے بھی لوگ بول دیتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نکالیں نا، صرف چاول تو نہیں نکالیں گے؟ تو آپ کے سامنے تو نہیں ہے کوئی بھی جو ہے پیس، گوشت کا پیس جو ہے آپ کے سامنے نہیں ہے، تو دائیں بائیں کہیں جو ہے تو وہاں سے آپ نکالیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث کو فٹ نہیں کریں گے کہ بھئی سامنے سے جو ہے کھانے کے لیے کہا گیا تو آپ کو سامنے سے ہی نکالا، یا قریب جو آپ کے ہے وہ آپ لیں گے، دور ہے تو نہیں لیں گے۔ تو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ٹیبل پر، اگر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ڈش جو آپ سے دور ہے، تو کچھ چیزیں آپ سے دور ہوں گی اور کچھ چیز وہ دوسرے سے قریب ہے اور آپ سے دور ہے، اور اسی طرح سے کچھ آپ سے قریب ہوگی ان سے دور ہوگی۔ تو یہاں پر وہ جو رول ہے نا وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے مانگیے کہ بھئی وہ ڈش ادھر بڑھائیے، آپ کے قریب جو ہے آپ ان کو دیجیے، تاکہ الگ الگ ڈشیں ہیں نا، الگ الگ چیزیں ہیں، تو آپ ہر ایک کا لطف لے سکیں، ہر ایک چیز کھا سکیں۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک سے زیادہ چیزیں تو چھوڑیے، وہ ایک چیز بھی دسترخوان پر دستیاب نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے۔ یہ انواع و اقسام کے کھانے کا رواج تو بہت بعد میں آیا ہے، اور دوسری تہذیبوں سے آیا ہے۔ عربوں میں تو یہ چیز عام طریقے سے نہیں رہا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کے دور میں، یہ ورائٹیز جو ہیں یہ کھانے میں، اور جب بیٹھ جائیں دسترخوان پر تو دسیوں چیزیں سامنے ہوں، یہ تو ان لوگوں کو دستیاب نہیں تھی۔ تو ابھی ہیں یہ سب چیزیں، تو اس میں سامنے والے سے آپ مانگ کر کے بھی کر سکتے کہ اس کو ذرا ادھر بڑھا دیجیے، خود ہاتھ بڑھا کر کے بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہاں یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی ہے، اس کی الگ ہے حدیث۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو، لوکی کہتے ہیں، کدو کہتے ہیں، عربی میں دبا کہتے ہیں، دبا، یہ اس کے پیس جو ہے نا تلاش کر کے نکالتے تھے آپ، اور اپنے برتن میں رکھتے تھے، کھاتے تھے۔ بڑی جو ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ کو پسند ہے تو اس دن سے میں بھی اسے بہت پسند کرنے لگا، اور میں بھی اس کو بڑے شوق سے کھانے لگا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے اگر، اور دسترخوان پر وہ چیز ہے، اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور ہاتھ بڑھا کر کے لینا پڑ رہا ہے، یا پیالے میں کہیں وہ چیز ہے اور اس پہ تلاش کر کے آپ کو لینا پڑ رہا ہے، تو وہاں پر اپنے سامنے سے نکالو، یا اپنے سامنے سے لو، یا اپنے قریب سے لو، جو حدیث ہے وہ وہاں پر بھی اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس میں تلاش کر کے اپنی پسند کی چیز لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
तो मौलवी लोग हों तो हम ये कह देते हैं, हम आप लोगों से तो नहीं कहते, अपने तलबा से कह देते हैं कि भाई आप मौलवी लोग तो मुर्गी की टांग के लिए बड़े मशहूर है ना, तो कोई बात नहीं है, कहीं भी आगे पीछे भी थोड़ा अगर है लेग पीस तो आप ले लो, कोई बात नहीं, आपको पसंद है आप खाओ, शर्माने की कोई बात नहीं। और वहां पर यह हदीस अप्लाई नहीं होती है। आपको जो पसंद है वो लेकर के खाइए, उसमें जो नहीं पसंद है मत लीजिए। अपने प्लेट में आप निकाल रहे हैं तो अपनी पसंद की चीज निकाल सकते हैं। तो प्यालों में अभी क्या है, सालन ला के रख दिया जाता है। तो अब वो सालन, कभी उसमें अगर गोश्त का सालन है तो आदमी पीस देखता है उसमें कौन सी पीस बेहतर है गोश्त की, जो उसे ज्यादा पसंद हो। कुछ लोगों को हड्डियों का गोश्त पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ और जो है सादे गोश्त पसंद होते हैं। तो जैसी जिसको जिस तरह की जो है जिस तरह का गोश्त पसंद है वो निकाल करके खा सकता है, अपने प्लेट पे ले सकता है वो। नहीं आपको सामने से ही लेना है, चाहे जैसा भी गोश्त हो, वो आपकी किस्मत समझ करके अपने सामने से ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं है शरीयत के अंदर, यहाँ जायज है ये। वो वही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में से वो कद्दू निकाल निकाल करके तलाश कर करके कद्दू निकाल रहे थे, क्योंकि आपको पसंद था। तो जी चीज आपको पसंद हो अपनी तरफ करके उसको आप दूसरों के सामने लें, अगरचे कि आपके सामने वो चीज नहीं थी, तो थोड़ा दाएं बाएं से भी आप उसे लें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो सामने से या करीब से जो खाने का मामला है उसकी शक्ल वो है जो मैंने बताया, कि जब वो एक दायरे की शक्ल में बैठे होते हैं, सर्कल की शक्ल में, और बीच में बड़े बर्तन में खाना होता है, तो हर आदमी को अपने सामने उसे लेकर के खाना होता है। तो ये सब चीजें ये आदाब का हिस्सा है, और ये खाने पीने के आदाब से ताल्लुक रखती हैं चीजें। इसमें हुर्मत की बात नहीं आती है, हराम होने का मसला नहीं आता है। तो उसी अब रोटी का मसला अलग अलग चीजों का अलग अलग जगहों पे अलग अंदाज होता है खाने पीने का। तो कुछ चीजें हम इंडियन कल्चर के लिहाज से बोलते हैं, तो ये जगहों का कल्चर अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसे रोटी खाते हैं हम लोग, तो रोटी खाने का बास जगहों पर कल्चर क्या होता है कि हाथ बाएं हाथ में पकड़ लेते हैं इसमें रोटी, और इससे तोड़ करके खाते रहते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। जबकि इस हाथ में चूंकि खाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना होता है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इसमें पकड़ा और इससे तोड़ के खा रहे हैं, सीधे हाथ से ही खा रहे हैं लेकिन पकड़े इसमें है। तो बास जगहों के कल्चर के लिहाज से इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। और हदीस में भी बाएं हाथ से खाने पीने की ममानत तो है ही, और ये जरा अच्छा नहीं लगेगा ना कि इस हाथ में पकड़े उसको। तो अब कल्चर क्या है, इसमें तहजीब क्या है, रख रखाव क्या है, कि आप बर्तन में रोटी रखें और उसमें से तोड़ें और एक एक लुकमा जो है लेके खाएं, सालन लगाएं, उसमें जो है सालन लगा करके खाएं। ये कल्चर। अब एक और क्या है, बाज लोग क्या करते हैं, पूरी रोटी ले लिया, सालन में पूरी रोटी तोड़ के डाल दिया, और उसके बाद अब पूरी रोटी मिला के सालन में अब उससे खा रहे हैं। बाज जगहों पे हो सकता है इसको अच्छा भी समझा जाता हो, लेकिन यहाँ के कल्चर के लिहाज से, मतलब इंडियन कल्चर के लिहाज से, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अकेले कोई खा रहा हो तो कोई अलग बात होती है, लेकिन जब आप जमात के साथ बैठे हैं ना, तो ये जमात पे साथ में बैठ करके जब खाते हैं, तो ऐसी कोई शक्ल इख्तियार करें जो दूसरे को पसंद ना हो। वो इसको जरा अच्छे यानी रख रखाव के खिलाफ मानते हैं, सलीके के खिलाफ मानते हैं, कि ऐसे पूरा मिला के खा रहा है। और रोटी लिया, सालन लगाया और खाया, एक तरफ से उसमें थोड़ा सालन लगाया खाया। और खाने का अंदाज ऐसा होता है कि खाने के बाद आपके हाथ में कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि रोटी इस तरह से वो तोड़ करके सालन में इस तरह से लगाते हैं कि हाथ में कुछ लगा हुआ नहीं रहेगा। अगर कोई चीज रहती भी है, जैसे मान लीजिए गोश्त वगैरह के पीस है,
तो उस गले हुए रहते हैं काफी वो, तो उसी रोटी के टुकड़े से उसको तोड़ करके सालन लगा करके खाते हैं, हाथ में कुछ नहीं लगता है। वो ये रख रखाव की बात है। मैंने कहा आदाब से इसका ताल्लुक है, तो वो इसको नापसंद करते हैं। जबकि बात जगहों पर ये देखा कि वो ये शक्ल होती है कि पहले रोटी ही प्लेट में रख दिया, उसके ऊपर सालन निकाल दिया, और उसी में फिर वो तोड़ तोड़ करके वो पूरा सालन में जो है, एक तरह से पूरी रोटी लथड़ी हुई है सालन में, और उसको जो है खाते हैं, और उनको वो चीज बुरी नहीं लगती है, दूसरे आदमी को बुरी लगती है वो चीज। तो ये चीज है, क्या है, ये रख रखाव का हिस्सा है ये। तो ये हदीस कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे नहीं होती है, मैं वो बता रहा था आपको। तो अब ये इसको हम ये हराम होने की बात नहीं कहते, लेकिन फिर भी जहाँ समाज सोसाइटी के जो रख रखाव होते हैं, खाने पीने के भी कुछ आदाब होंगे, उससे ताल्लुक होगा उसका, और हमारी शरीयत के खिलाफ नहीं है अगर वो चीज, उसका एहतमाम करना या उस तरह से उस पे अमल करना, तो कोई बात नहीं है, उसका रख रखाव का ख्याल किया जाता है कहते हैं। अगर चिकी अपने आप में वो चीज जायज है शरीयत में, लेकिन वहां मुआशरे के रख रखाव के खिलाफ है, तो फिर आपको उससे बचना चाहिए। इसी को कहते हैं कि मुरुवत का ख्याल कर। ये असल आदाब ही से ताल्लुक, सोसाइटी के आदाब से उसका ताल्लुक होता है, और हमें उसका ख्याल करना पड़ता है। मैं एक और चीज पेश कर दूं आपको। मौज खाते हैं ना, मौज, केला, कहीं केला कहते हैं, कहीं मौज कहते हैं, तो अलग अलग जबानों में है ये। तो मौज तो अरबी लफ्ज है। तो कहीं ऐसा देखेंगे कि मौज क्या है खाने का, कि पूरा एक साथ छिलका निकाल देंगे और फिर वो नंगा करके उसको हाथ में पकड़ के खाते हैं। तो ये कोई मसला नहीं, उनको कुछ उनके यहाँ उसमें कोई मसला नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी इलाके हैं हमारे इस मुल्क में कि अगर आप ऐसे खाएंगे लोगों के साथ बैठ करके, तो लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं, कहते हैं नंगा करके खा रहा है उसको। तो थोड़ा थोड़ा छील करके हाथ में पकड़ेंगे उस जगह पे जहां अभी छिलका लगा है, और उसको खाते जाएंगे। जैसे जैसे खाते जाते हैं छिलके को नीचे करते जाते हैं, इस तरह से छिलका ही हाथ पे लगा रहेगा। इसका फायदा ये होता है कि हाथ में कुछ लगता नहीं है उसका, यानी केले का कोई हिस्सा जो है। तो ये रख रखाव की बातें हैं। तो ये एक मसला था जो आपके सामने पेश करना था उस हदीस को लेकर के। अभी वक्त हो गया है, हम दूसरा मसला नहीं पेश कर सकते अभी आपके सामने, वो ज्यादा अहम मसला है, वो बड़ा लंबा मसला भी होगा। वो क्या है कि खाने पीने के लिए बैठ करके खाना और खड़े होकर के खाना पीना। मैं चाह रहा था कि आज आपके सामने वो मसला पेश करूं, लेकिन वो मुमकिन नहीं होगा, वो थोड़ा लंबा मसला है। तो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह हम उसे पेश करने की कोशिश करेंगे। आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको वक्त जो है वो आपके इख्तियार में देते हैं कि आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जी। शेख, ये जो रख रखाव का आपने बताया, मतलब तो हम्म। हम जैसे डिफरेंट स्टेट्स में कभी जाते रहते हैं या जी हाँ, जी ऐसे, हाँ। तो लोगों से मिलना रहता है, तो हम्म। एज ए इस्लामिक पर्सन हम लोगों को जानना चाहिए कि उन लोगों की खाने की आदत कैसे हैं, फिर हम लोगों को भी थोड़ा अपने आप को मोल्ड करना चाहिए वैसे। जी हाँ, जी हाँ, उनके जो थोड़ी चीजें होती हैं आदाब से ताल्लुक रखती है, तो उनका, उनके रख रखाव का थोड़ा ख्याल करते हुए उस अंदाज को अपनाने में, ये मानेगा ना कि ये मुरुवत है ये। अरबी में इसको मुरुवत कहा जाता है, अल मुरुवतु। और मुहद्दिसीन के यहाँ हदीसें जो कबूल करते थे तो कहते थे कि जो आदमी इसका ख्याल करता है ना, उनकी हदीसें वो लिया करते थे, जो नहीं करता है तो कभी उसकी हदीसें छोड़ दिया करते थे, इसकी वजह से सिर्फ कि उसको रख रखाव का ख्याल नहीं है जी। तो इसका है, इसका लिहाज किया जाता है जहाँ रहते हैं उसके लिहाज से, आपको उनके रख रखाव का थोड़ा ख्याल, नहीं पता नहीं है तो अलग बात है, पता है तो रख रखाव का ख्याल करना चाहिए जी। अब शेख, अगर हमारे स्टेट में कोई बाहर से मेहमान आए तो हमारे साथ हम्म। खाना खाए,
تو اس ٹائم پہ ہم کیا کریں؟ مطلب ہمارے کھانے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ جی ہم ان کی طرح سے ان کے رکھ رکھاؤ کا خیال رکھیں کہ کیا کریں؟ نہیں، آپ نے اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے کھانا رکھا اور ان کو بتائیں کہ دیکھو بھائی ہمارے یہاں کیا طریقہ یہ ہے، اگر ہوں، آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اپنے طریقے سے آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں کا رکھ رکھاؤ یہ ہے۔ تو وہ چلو، ایک سلیقہ ہوتا ہے، وہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ سامنے والا بھی آپ کے طریقے کو پسند کرے اور اس لحاظ سے وہ کھائے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی ہر شیخ۔ آدمی جب پیش کرتا ہے نا مہمان کے سامنے تو اپنے رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے ہی پیش کرتا ہے، لیکن اگر مہمان کو چیز پسند نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس کو جو پسند ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز اس کے سامنے رکھنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے لحاظ سے اسے کھا سکے۔ جو چیز پسند نہیں ہے تو ہم کسی کے اوپر اپنی پسند کو تھوپ نہیں سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں اس کا بھی خیال ہوتا ہے، وہ آگے مسائل کچھ آئیں گے اس طرح کے کہ کچھ ڈشیں تھیں جو آپ کو پسند نہیں تھیں، تو آپ اپنی طرف سے ان ڈشوں کو ہٹا دیتے تھے، اور صحابہ جن کو پسند ہوتی تھی وہ اپنی طرف کر کے کھا لیا کرتے تھے اسے۔ تو یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی آپ کو اپنی پسند آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتا، اگر وہ چیز جائز ہونے کی حدود میں آتی ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ شیخ اس کے ساتھ ایک اور یہ سوال ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ کا جیسے کراہت آتی ہے اس میں کھانا تو بالکل ہی مطلب جائز ہم نہیں نے ہے۔ تو کہا کہ وہ حرام ہے، وہ تو یہاں کراہت ہاں، کا مسئلہ نہیں، وہ حرام ہے بالکل، جی ہاں۔ نہیں نہیں، شیخ میں کہہ رہا ہوں کھانے کا تو سمجھ گیا میں، جیسے نان بائی ہوتے ہیں، ہوں تو جو روٹیاں ووٹیاں بناتے ہیں تو جب وہ آٹا گوندتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے گوندتے ہیں، تو وہاں جی پہ ہاں۔ انسان کو تھوڑی کراہت ہو جاتی ہے، ہوں تو اس مسئلے میں کیا وہ صحیح مطلب؟ کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے اگر گوند دیتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہ ہاتھ دھو کر کے ہی گوندتے ہیں، وہ کھانے میں نہیں آتا اصل، یہ کھانے جی کے ٹائم پر اس کا خیال نہیں آنا چاہیے، وہ تصور نہیں آنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ آپ جو بیکری وغیرہ کے سامان یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جی کہا جی جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو جا کر کے دیکھ لینا، خاص طریقے سے جب یہ ہاتھ سے آٹا گوندتے تھے، ہاتھ کیا پیر سے بھی گوندتے تھے، ایسا یہ بتا دوں آپ جی کو، جی جی تو پیر باقاعدہ اس میں استعمال کر اسی پہ چلتے تھے، جو ہے وہ کرتے تھے، ہم نے ایسے بھی دیکھے جو ہے، تو آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کبھی نہیں کھائیں گے بیکری کا سامان، ایسا کہتے تھے۔ خیر اب تو جی وہ مشینیں آ گئی آٹا گوندنے وغیرہ کی، تو وہ مسئلہ اب ختم ہوا، نہیں تو کیا اس طرح سے گندگی ہوتی تھی اس میں، پسینہ ہو رہا ہے، پسینہ اسی میں ٹپک رہا ہے، سب کچھ ہے، اور وہی آٹا ہوتا تھا اور اسی سی چیزیں بنا کر کے یہ بیکری والے آپ کو کھلاتے تھے۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ ہم۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ ابھی آپ نے جو بتایا کہ کھانے کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، جو حدیث ہے شیخ، ہم۔ تو اس کے اندر جو شکل بتائی گئی ہے کیا وہ ہم۔ صرف ادب کے اتنا ہی محدود ہے شیخ، یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ بیچ میں جا اگر کھانے سے برکت چلی جاتی ہے، ایسا کچھ ہے شیخ؟ تو وہی بیچ میں کھانے کا مسئلہ، ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ بیچ میں جو ہے برکت نازل ہوتی رہتی ہے، جی شیخ۔ جو اس طرح کی بات ہے تو وہ بھی اسی شکل میں ہے، جب آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو، اور ایک ہی برتن میں اسی شکل میں ہوتی ہے، وہ اجتماعی جو ہے کھانے کی شکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے اپنے پلیٹ میں نکال کر کے کھاتے ہیں تو پھر اس طرح کا وہ مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، بریانی آپ نے نکال لیا پلیٹ پہ مان لیجیے، اور بیچ میں وہ پیس ہے کس کا، جو ہے گوشت کا پیس جو ہے بیچ میں ہے، تو آپ اس میں سے توڑیں گے نہیں کچھ، جو ہے اب میں سامنے سے ہی کھاؤں گا، بیچ میں سے نہیں لوں گا اس کو، گوشت کو نہیں لوں گا، اور بیچ کا آئے گا تب گوشت کھاؤں گا، تو ویسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی ہے، آپ کو ابھی کھانا ہے تو اس کو ابھی لیجئے۔ میں نے ابھی حدیث پیش کی تھی نا آپ کو سالن کے بارے میں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ اور دایاں بایاں نہیں کچھ دیکھا،
जो चीज पसंद है आप उसको निकाल रहे थे उस प्याले में से, और वो कद्दू था। तो ये चीज भी है, वो भी हदीस भी है। तो उसको सामने रखते हुए ये बात कही गई कि वो शक्ल जो होती है वो आप बैठे हैं और ऐसे बड़े बर्तन में खाना रख दिया गया है, तो आप बीच में हाथ लगाएंगे किनारे का छोड़ करके, तो वो दूसरे लोगों को कराहत भी होती है और दूसरे मसाइल भी उससे जुड़े हुए हैं, मैंने अभी आपसे कहा। तो आपको अपने सामने से खाना होता है जी। और शेख, जब हम लोग खाते हैं तो क्या ज़रूरी है कि बस 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें या 5? अगर वो हम तो लोग खैर चावल। बाद में बात आएगी कि कितनी उंगलियां जो है, वो कौन सा, अलग अलग खानों का अलग अलग हिसाब है ये। तो जी ऐसा कुछ उंगलियों का मसला आएगा, वो भी मसला इंशाल्लाह आएगा। जी तो शेख। उसके बारे में बात करेंगे जी हाँ। जी शेख, जज़ाकल्लाह। एक जब सपोज जब इंसान शादी करता है तो उसकी बीवी एक दूसरे घर से आती है, तो विद इन मतलब एक ही माशरा होता है, मतलब एक ही स्टेट होती है। तो उसकी बीवी के घर में एक अलग तरीके का माहौल होता है और खाने पीने का और चीज, और हम्म हमारे घर के अंदर दूसरा होता है। तो हम्म बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मतलब सास या बहू, मेरी माँ या मेरा फादर, तो उनको किस अलग अंदाज से कुछ चीज़ें पसंद होती है, लेकिन वो इस्लाम में जायज़ होती है। लेकिन हम्म। मेरी वाइफ जो है उसको दूसरे अंदाज से पसंद होता है। तो इस मामले में मैं अपनी बीवी को, या हम हमारा अमल कैसा होना चाहिए ताकि वालदेन के साथ भी जो है, मतलब उनका दिल जो आज़ारी ना हो। बेहतर रख रखाव है उसे इख्तियार कर लेना चाहिए सबको मिल करके, और थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी हर कोई अड़ा रहे कि भाई हम अपने रख रखाव के लिहाज से ही रहेंगे, तो हम्म। इसके साथ जिंदगी नहीं चलती है। जब आपको इज्तिमाई शक्ल में रहना है और सबको मिल के रहना है, तो कंप्रोमाइज करना, और कहते हैं कि माहौल के लिहाज से अपने आप को ढाल लेना, ये आना चाहिए। ये सिर्फ शौहर और बीवी का मसला नहीं है। ये जो है चंद साथी जो एक जगह कहीं रूम शेयर करते हैं और अलग अलग स्टेट से उनका ताल्लुक होता है, तो उनके साथ भी इस तरह के मसाइल आते हैं कि आपका अपना रख रखाव होगा, उनका अपना रख रखाव होगा। लेकिन जब आप एक जगह पे रहते हैं तो वहां का जो रख रखाव है उसके लिहाज से आपको उस माहौल में अपने आप को ढालना होता है, उस माहौल को इख्तियार करना होता है। ये है, ये तबीयत में रहना है, ये बहुत जरूरी चीज है ये। मैं शौहर और बीवी के बाहमी जो ताल्लुकात हैं उस पर मेरा अभी जल्दी एक दर्स हुआ था। वो शायद कोई और थे, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको किया था, कि कैसे अभी घरों की कितनी मसाइल हैं शौहर और बीवी के दरमियान। उसकी एक अहम वजह ये भी होती है ना कि जब आप ये तय कर लें पहले से कि भाई मैं ऐसे ही था और मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मैं क्यों चेंज करूं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, तो ऐसे जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती है। बल्कि आपको अपने आप को हालात के लिहाज से ढालना पड़ता है, बहुत सी चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ये सब सीखना पड़ता है। ये जिंदगी का हिस्सा है। ये आजकल के जमाने के लोगों के अल्फाज हैं, ये जुमले हैं कि भाई मैं ऐसे ही हूं, हाँ मैं ऐसे ही हूं, मैं अपने आप को चेंज नहीं करता, मैं क्यों चेंज करूं अपने आप को। नहीं, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि ठीक है अभी वो मुझे उसकी आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। तो ये तरीका होता है, अपने आप को माहौल में ढालना होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई गए हैं आप लोगों में से, तो मैं बताऊं, उसकी मिसाल दूं आपको। अलीगढ़ का अपना एक रख रखाव है, वो यूनिवर्सिटी का अपना एक माहौल है। चाहे वो किसी भी स्टेट का कोई स्टूडेंट होगा, उसको उसी लिहाज से रहना होगा वहां। और रहते हैं सब लोग उस माहौल में ढल जाते हैं, हत्ता कि अपने घरों में भी जाते हैं तो अलीगढ़ की वो तहजीब लेकर के जाते हैं, वो कल्चर लेके जाते हैं। बड़ा अच्छी, बहुत अच्छी तहजीब मानी जाती है वो। अभी तहजीबों का शहर जो कहलाता था,
اور تہذیب علی گڑھ کی آج بھی جو ہے اس کی اپنی ایک پہچان ہے. حالانکہ اب چیزیں کافی بدل چکی ہیں، لیکن تھا ان کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہے. کبھی گئے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی وہاں پہ؟ ایک میں تو نہیں گیا ہوں. ہاں، تو جو لوگ گئے ہوئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹ جو ہے صرف انڈیا کے نہیں، باہر کے بھی ہوتے ہیں، اور انڈین بھی جو ہے مختلف اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہاں اسٹوڈنٹ. اور ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہاسٹل میں ایک ہی روم میں ہو، لیکن سب کو ایک انداز سے رہنا پڑتا ہے. یہاں کوئی یونیورسٹی کا قانون بھی نہیں ہے ویسا، یہ بھی بتا دوں آپ کو. لیکن وہاں طلبہ کا اپنا رکھ رکھا ہوا ہے. اگر اس کے خلاف گئے تو پھر آپ کو وہ طلبہ جو ہے اتنا ستا دیں گے کہ آپ پھر چھوڑ دیں، یا تو پھر وہ کلچر کو اختیار کریں گے. دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے گی. تو جی یہ شیخ ہے چلو. شوہر اور بیوی میں بھی یہی. آپ کا جو سوال تھا نا اس کی طرف آ رہا ہوں. تو بیوی اگر دوسرے کلچر سے ہے، دوسرے اسٹیٹ سے ہے، تو اس کو اپنے سسرال کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس کو سیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ سیکھا جاتا ہے. اور آپ کو بھی اگر کہیں ایسا موقع آتا ہے تو صرف لڑکی ہی کرے بول کر کے نہیں. اگر اس کا معاملہ ہو جائے کہ لڑکا کسی اسٹیٹ میں ایسے چلا گیا ہے جہاں اس کی شادی ہوئی ہے، تو اس کے سسرال کے لوگوں کا کلچر الگ ہے، تو پھر آپ کو ان کے کلچر کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. آپ اپنی چیز کو لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں میں ایسے ہی ہوں، میں ایسے ہی ہوں، میں ایسے ہی صحیح ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا، تو یہ جو انداز ہے نا یہ بہت ہی غلط انداز ہے. نہیں اگر شیخ میرا ہوں 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 یہاں پہ نا مطلب میاں بیوی تو ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں مطلب. ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں بات آتی ہے والدین کی اور یہاں سے ہاں، بغیر والدین کے والدین. لحاظ سے ہی بول رہا ہوں میں یہ. تو جی جی جیسا جی ہے سسرال کے لوگ جس طرح کے جس کلچر کے ہیں، اس کلچر کو جب کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے وہ، جی. اسلام کی میں بھی اس کی اجازت ہے، جائز چیز ہے، تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے. اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو اصل میں، اور ایک اندازہ ایک ہو جاتا ہے ایک جو ہے، اور اچھی چیز ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، لگنے لگتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے ہیں اور اب جو ہے فلاں جگہ رہ رہے ہیں، اس لیے اب ان کا اس طرح سے انداز ہو گیا ہے رہنے کا، اور کھانے پینے کا یہ انداز ہو گیا ہے، اس لیے ان کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، تو کچھ چیزوں کی عادت ڈال دی جاتی ہے. جی. جزاک اللہ خیر شیخ. ہوں. شیخ ایک سوال تھا جو دودھ پینے کی دعا ہے، آ، جو علامہ بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ہوں. تو ہمیں یعنی کیسے معلوم ہے کہ یہ دعا ہر بار پڑھنی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پہ اسے بڑھانے کے لیے دعا کی تھی، یا آ، وہ کیسے معلوم کریں شیخ؟ دیکھیے، اب چونکہ حدیث میں بات آئی ہے تو ہم اس کو کیوں جو ہے کسی خاص موقع کے لیے مانیں گے؟ ہم تو اس کو عام ہی مانیں گے. اور اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی دودھ بہت ہی اچھی غذا ہے، اور اس سے بہتر آپ نے نہیں مانگا، اور یہ مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں اور اضافہ کرے اور زیادہ ہم کو عنایت فرمائے. شیخ آپ نے ایک درس میں بتایا تھا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی مطلب دودھ ایک ہی چیز ہے کہ جس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی ہے. نہیں نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ برکت کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے کہ اس کو اور اور زیادہ دے. زیادہ. جی. وہ خاص یہ برکت نہیں، برکت کی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی، لیکن اور دوسری چیزوں میں جب کھاتے تھے تو برکت کی دعا بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ اس سے بہتر عطا کر. جی جی دودھ میں اس سے بہتر نہیں کہا آپ نے، یہ کہا کہ اسی کو اور زیادہ عنایت فرما. جی شیخ، ایسی دعا دوسری کسی کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ملتی ہے. نہیں، یہ دودھ کے ساتھ ہی ملتی ہے، جی شیخ، خاص ہے. دوسری چیز کے ساتھ نہیں ملتی. جی.
جی ابھی تو اذان ہو گئی تو ہم لوگ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ملیں گے. زیادہ ہم مسئلہ کھڑے ہو کر کے کھانا پینے کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ وقت لے گا، تو آپ وہ شاید سوالات بھی زیادہ ہوں اس وقت. تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے اس کے بارے میں بات کریں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.